CAT exam results were declared and you didn't score as much as you expected. यार इतने कम कैसे परसेंटाइल आ गया? आई एम स्क्रूड. अब तो MBA का कोई सीन ही नहीं है. अभी वापस CAT लिखना पड़ेगा. मेरा सब मेहनत वेस्ट चला गया. अरे यार दिस दैट. So guys, welcome back to my channel All Sorted. In this video I'll share my experience of what happened to me. मेरे साथ भी सेम चीज हुई थी. CAT results were very bad. I lost all hope and I was like कि यार वापस रिपीट करना है, ये करना है, जॉब करना है कि क्या करना है. I was so confused in life because I am लेके चला था माइंड में. बाकी सब everything went blank. बाकी सब लोग आ posting I got this 99 percentile, 98 percentile. मैं तो IIM जाऊंगा. My friends were scoring good and I was like I'm screwed. I've done nothing. I'm just useless and all. And do prepare well for the exams like TISNET and IFT which are coming in. Do not have that spillover effect of bad CAT results on these exams which are best because why you are an MBA aspirant, not an IIM aspirant. Keep watching the video, guys. I'll share my story. मेरे साथ क्या हुआ था. I do remember the exact day of CAT results. The results I prepared first time. मेरा CAT अच्छे से निकल गया था. मस्त मजे में देके गया था without much preparation. I got IIM रायपुर and I got IIM रोहतक. So I was like कि नहीं अच्छा IIM में जाऊँगा. ABC try करते हैं. So I wrote CAT exam again next time but मेरा सेक्शनल कट ऑफ ही निकला नहीं. सो मेरा DILR का सेक्शनल कट ऑफ I could not clear the DILR sectional cut off. Overall I scored good. I was dejected. I felt so bad on that day कि यार DILR एक सेक्शनल कट ऑफ की वजह से मैं एक अच्छे IIM में नहीं जा पाऊंगा. एंड आई वाज लाइक बाकी कॉलेज में अप्लाई भी क्यों करना है, अभी तो सीधा थर्ड अटेम्प्ट देना है. But while preparing for the third time, all major exams like SNAP, TISNET, IFT, ZAT, and I also applied to all best colleges like NEET, like IITs. Also do remember अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार हुआ है किसी भी VARC, क्वांट या DILR, don't lose hope at all. Okay, you can still apply to colleges which do not look for sectional cutoff like NEET doesn't look for sectional cutoffs, like the IITs don't look for sectional cutoffs. So do apply to colleges like if you have like percentile अच्छा खासा आपका overall आ गया है, do apply to IIT Bombay, IIT Kharagpur, IIT Madras, IIT Roorkee ठीक ठाक है. GEMSOM is quite good. NEET is best college for operations. Okay, better than IIMs. More experience. I made informed decisions. I made choices that were very good because of my batchmates from NIT Nagpur were spread in all the IIMs. I talked to everybody. They were spread in each of the colleges. And that's why I am here to share my experience so that you don't repeat the mistake I made. ऐसा ही हाल था. Okay, so I prepared next time really well for IFT. CAT का जैसे रिजल्ट आया मैं भूल गया. चलो 2-3 दिन में रोया मैंने. I was like pathetic in state of mind everything. But then मैंने जम के प्रिपेयर किया for IFT. I put everything for SNAP. I put my everything for TISNET exam. And I converted all major colleges. I converted SIPM Pune. I converted NEET, OK Mumbai. I converted IFT Delhi. I converted TIS Mumbai, where I am right now at TIS Mumbai HRM and LR. I am very happy here. Excellent ROI. OK, in this pandemic, जहाँ पे लोग 25-20 लाख की फीस दे रहे हैं IIMs में and jobs भी नहीं लग रही है. Here I got a PPO offer at TIS Mumbai with a fees of just 2 lakhs. And I've already recovered my fees through the stipend that I got in my internships. Clearly, one exam doesn't decide anything. मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी का स्टोरी नहीं बता रहा हूँ. एंड ऑल माई अदर फ्रेंड्स हु डिड नॉट क्लियर CAT एग्जाम, उनका परसेंटाइल IIM से कॉल नहीं है. NEET में अप्लाई किया थ्रू CAT रिजल्ट जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखा जाता है. सो दे आर प्लेस्ड एट अमेजिंग प्लेसेस राइट नाउ. अच्छे कंपनीज में लग जाते हैं. सो इफ यू वॉन्ट टू चेक कि यार मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, जस्ट गो टू LinkedIn पे जाओ, TIS HRM and LR लिख दो एंड सी द स्टूडेंट्स. वहाँ पे CHRO लेवल तक लोग गए हैं TIS मुंबई से. एंड ऑल द ड्रीम कंपनीज दैट यू कैन थिंक ऑफ,
पीपल आर देयर एवरीवेयर, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी आप सोच रहे हो सब जगह पे टिस के लोग हैं. सिमिलरली विद IFT दिल्ली, अगर आप सिर्फ लिंक्डइन पे लिखोगे बहुत सारे प्रोफाइल्स आपको दिखेंगे. जस्ट चेक द कंपनीज दे आर प्लेस्ड एट, जस्ट चेक द प्रोफाइल्स दैट दे आर हैविंग. सिमिलरली फॉर SIBM पुणे. So one exam like CAT, ठीक है, IIM ABC is at another level. Okay, I do agree with that. सबका एक एम होता है, बट वो ही एक चीज नहीं है. टॉप 20 कॉलेजेस आर ऑल बेस्ट गाइज. ओके, टॉप 20 कॉलेज, टॉप 15 कॉलेज ऑफ इंडिया में अगर आपको जाने का मौका मिल रहा है, सो व्हाई वुड यू लूज दैट अपॉर्चुनिटी. सो यार मेरा स्टोरी ऐसा था कि हमारे टाइम पे तो कैट के बाद जस्ट आफ्टर 5-6 डेज IFT का एग्जाम होता था. अभी तो आपको फिर भी टाइम है. सो IFT का जम के मैंने मॉक्स लिखे. ओके, क्योंकि प्रिपरेशन वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर टू कैट, ओनली द GK पार्ट वॉज देयर विच आई हैड टू स्टडी फॉर. ओके, मैंने वो कुछ खरीद लिया था मटीरियल, एंड आई पुट ऑल माई एनर्जी इन टू राइटिंग मॉक्स, एनालाइजिंग द मॉक्स, एंड दैट वॉज इट. रोज मैंने 6-7 मॉक्स इन टोटल, बिकॉज 6-7 दिन का ही गैप था, तो रोज एक मॉक दे के एनालिसिस करके बढ़ता था. बिकॉज IFT का थोड़ा सा आपका स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको हर सेक्शन का कट ऑफ एक मेंटेन करना है. सो आपको सबसे पहले हर सेक्शन में विजिट करके एक कट ऑफ पार कर लेना है. लाइक 5-6 मार्क्स कट ऑफ रहता है, 8-7 मार्क्स. DLR का तो 1-2 मार्क्स का कट ऑफ था मेरे टाइम पे. ओके, 1-2 मार्क्स DLR कट ऑफ. बट होता क्या है, इन दैट फ्लो पीपल लूज आउट ऑन सम सेक्शंस. आखिर में आके बहुत जमलिंग हो जाता है, सो दे डोंट क्लियर द IFT सेक्शनल कट ऑफ. ओवरऑल अच्छा होके भी कॉल नहीं आता है. सो IFT का थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगा. स्ट्रैटेजी में बोलने से कुछ नहीं होने वाला. यू हैव टू राइट मॉक्स, यू हैव टू एनालाइज द मॉक्स. अपने आप स्ट्रैटेजी आपका अच्छा होने लग जाएगा. दैट्स इट. सो कमिंग टू टिसनेट HRM में मैं बहुत सोच समझ के गया था, बिकॉज आई हैड ऑल द मेजर कन्वर्ट्स लाइक IFT, NEET, SIBM, everything. Okay, I am Lucknow, but then I chose TIS Mumbai HRMNR because my personality suits best for the HR role. I like to bring out the best in people. That's what the job of HR majorly is. I like psychology, I like creativity, and I like to develop people, and that's what I'm trying to do through my videos, to share knowledge, to help you be your best versions. So ये सब मैंने बहुत लोगों से बात की कि दिस इज माई इंटरेस्ट एरिया. TIS HR एक ऐसा कॉलेज है जिसका ROI इज अनमैच. 2 लाख देके आपको 20 लाख का एवरेज सैलरी मिल रहा है. HR मेरा एक इंटरेस्टिंग डोमेन है जहाँ पे मैं पक्का जाना चाहता हूँ. द प्रोफाइल जस्ट साउंड्स इंटरेस्टिंग टू मी, और इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है फॉर HR. सो व्हाई नॉट अप्लाई, व्हाई नॉट पुट योर होल एंड सोल. I know the seats are less, 60-70 seats है, but you only care about your 1 seat ना. अच्छे से कर दो यार, आराम से हो जाएगा. If you prepare seriously, diligently right now, अभी से लेके रोज आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो. जीके के लिए करंट जीके अच्छे से कर रहे हो, नॉन जीके पार्ट दैट इज क्वांट का फुल स्कोर कर रहे हो 60 में से 60, देयर इज अ हाई चांस ऑफ क्लियरिंग टिसनेट एग्जाम, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी टफ एग्जाम. और टिसनेट एग्जाम भी थोड़ा सा टफर होता है देन टिसनेट, बट वो भी आराम से निकल जाएगा. सो गाइज जस्ट होल्ड ऑन, बी डिलिजेंट, डोंट लेट द कैट रिजल्ट्स अफेक्ट एनीथिंग, पुट प्रेशर ऑन यू अबाउट एनीथिंग. सेपरेट है सब टॉप कॉलेजेस है. आपको हर एग्जाम इंडिपेंडेंटली देखना है कि ये एग्जाम अभी आया है. पूरा फोकस मेरा ऐसे इस पे होना चाहिए कि मुझे इसी एग्जाम के थ्रू अभी कॉलेज में जाना है. That is the right attitude to crack every exam. Don't let any result bother your preparation now. In fact, it should enhance your preparation right now. पूरा focus अभी एक चीज पे आ जाना चाहिए. So again guys, ये चीज आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बताने वाला है, कोई आपका फ्रेंड भी नहीं बताएगा कि यार इतने सारे अलग टॉप कॉलेजेस, सबको IIM का हवा, जैसे IIT के टाइम, इंजीनियरिंग के टाइम IIT का हवा था, अभी IIM का हवा है. आई अंडरस्टैंड ABC का हवा रहता है, बट डू अंडरस्टैंड कि आपको करियर MBA करना है. आप IIM के एस्पिरेंट होके क्या उखाड़ लोगे. ओके, इफ यू गेट टू गो टू द मेजर कंपनीज, मेजर इंडस्ट्रीज, बेस्ट कंपनीज, आप इस कॉलेज के थ्रू जा सकते हो आराम से. IFT से आप मार्केटिंग रोल्स, फाइनेंस रोल्स, NEET से आप ऑपरेशन के बेस्ट रोल्स, TIS से आप HR के बेस्ट रोल्स इन द कंट्री आराम से ऐसे उठा सकते हो. इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट. जस्ट अप्लाई as if you want to crack this exam and enter the college through that exam. A lot of students ask me, is time sufficient right now if I start preparing from right now? The answer is yes, it is sufficient. Just efforts की बात आ जाती है, how diligently you prepare, how much discipline you have, how much composure of mind you maintain, because
स्ट्रेस फैक्टर आ सकता है, जैसे कम एग्जाम छोटे कम बचते हैं तो यू फील लाइक यार ये क्लियर होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, मेरा प्रिपरेशन इनफ है कि नहीं. यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट दिस डे, प्लान आउट योर डेज एंड आज का दिन है, जस्ट फोकस ऑन दिस डे. मुझे मॉक लिखना है, बस मॉक लिखना है. एनालिसिस करना है, बस एनालिसिस करना है. मुझे जीके आज करना है, 2 घंटा करना है तो करना ही है. बी डिसिप्लिन्ड, बी डिलिजेंट एंड बी कंसिस्टेंट. दैट इज द मंत्रा टू क्रैक दीज एग्जाम्स. ऑल्सो गाइज डोंट थिंक कि आपका अगर कैट परसेंटाइल बहुत अच्छा भी आ गया है फॉर दोज स्टूडेंट्स कि आपका GDPI निकल जाएगा. GD तो खैर IIMS में नहीं होता है, पर आपका PIT-PI निकल जाएगा, WAT PI जो भी होता है निकल जाएगा. रिटन एबिलिटी, बिकॉज 10:1 का रेशियो होता है. अगर आप 10 स्टूडेंट्स को बुलाते हो, इवेंचुअली 1 का होता है. सो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ गए कि मेरा तो क्या IIM में हो जाएगा, सो यू आर actually being a fool, okay, because selection depends on a lot of criteria which are not in your control. So it is wise to focus on all the exams that are coming. I congratulate you for scoring good if you have scored good in CAT, okay, but do prepare for other exams as well because you never know आपका convert होगा कि नहीं, even if you get a call. So my friends, CAT अच्छा गया, CAT बुरा गया, सब कुछ भूल जाओ, फ्रेश स्टार्ट करो. नया दिन है, नई शुरुआत करो. अपने को बेस्ट सैलरी चाहिए, अपने को बेस्ट कंपनी में जाना है, बेस्ट करियर बनाना है, तो कोई भी कॉलेज से टॉप 15 टॉप 20 में आराम से बन सकता है. जस्ट अगेन मैं आपको प्रूफ मैंने बता दिया है. लिंक्डइन पे जाओ, कोई भी कॉलेज का नाम लिखो, वहाँ के स्टूडेंट चेक करो कौन सी बड़ी पोजीशंस पे है. सो जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है. एक एग्जाम डजंट डिसाइड एनीथिंग. Okay, your attitude will matter a lot in life, and so that is my message in this video. फिकर not, okay. फिकर छोड़ दो अगर आपका रिजल्ट बुरा भी आया है. Your attitude more than your aptitude determines your altitude in life. Attitude सही रखो. जो एग्जाम है उसके लिए अभी फोकस करो. पास्ट को भूल जाओ, पास्ट का बैगेज प्रेजेंट में मत आने दो. प्रेजेंट में रहो, आज में रहो. आपका फ्यूचर अपने आप जबरदस्त बन जाएगा. So with this message guys, I wish you all the best. Do subscribe, do share it to your friends. Lot of videos will be coming up. So guys, subscribe, like, share. Bye bye guys, all sorted.